this is the part, this is October, November 2011. So in this particular part, what we are supposed to do right now, okay, in this part, we are going to do the diagram represents a metal plate OABC consisting of a sector OAB circle with center O and radius R together with triangle OCB, which is right angle at C, angle AOB is theta, OC is perpendicular. So this whole information, this is a metal plate. And now the metal plate is basically consisting of two parts. This is a part of a triangle right now, and this is a part of a sector right now. Both parts are connected together to make a single piece of a plate. Now they are asking for the first part, find an expression in terms of R, find an expression in terms of R, theta, and theta for the perimeter of the plate. Now, if I'm talking about for the perimeter of the plate, that means I need this length, I need this length, and I need this length, which I already know is a radius, and I need this length. So I need these four lengths for the perimeter of this part. So I'm going to write number one, I need the perimeter. So for perimeter, I need OC first, then I need CB, then I need OA, then I need the arc of AB. So first I'm going to do the working for the arc AB. And if I want the arc of AB, the formula for the arc length is S equals to R theta. And I need the value in terms of R and theta. So I'll write R theta simple. So the value of arc AB is going to be R theta. So that was again very simple part. So this is R theta. I'm going to write this value. Moving forward towards the next part, I can see there is a right angle triangle right now in front of me, right? So it was a right angle triangle. So for this right angle triangle, I'm going to just write a 90-degree over here. This is C, this one is B, and this is O right now. This angle is theta, and this is basically R. So as you know, the first thing which you need is you need the value of OC right now. So beta, if you observe OC, if you're going to observe OC, so OC is basically kind of your opposite. And if you observe CB, this is basically kind of adjacent. So if I need the value of, if I need the value of opposite right now, so what I need to do right now, I need to use the ratios of sine. So I'll be using sine theta is equals to opposite upon hypotenuse. So I'll be writing sine theta, and instead of writing opposite, I'll be using OC, and instead of using hypotenuse, I'll be writing R. So the value of OC right now is R sine theta. So I know this value, which is R sine theta. And for this particular part, for the part of CB, I'm going to use the ratio of cos. I'm going to use another color. So cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse. I'll be writing cos theta. The value of adjacent is going to be CB. The value of hypotenuse is again R. This is the value of CB is going to be R cos theta. So this is R cos theta. So now for perimeter, I need this value, I need this value, I need this value, and I need this value. So I'm going to add each and every single value like this. So my answer for perimeter is going to be now the OC is going to be R sine theta, R cos theta, OA was R, and the arc length was R theta. So if I'm going to take R as a common, so sine theta plus cos theta plus 1 plus theta. So that is going to be my final answer for this particular part. So we are done with the first part, guys. Now moving forward towards the second part. So now what is happening for the second part is I need for the case now they are going to give you the value of R and theta also, right? And they are asking for the area of the perimeter, and they're not asking that give me value in terms of square root or give me value in terms of pi. So you need the actual value or you need the proper value right now. So as you can look in this diagram, so I am using the blue color for the second part. So I need the area. So if I'm going to look towards the area of this complete shape, so I'm going to use two things. So first thing, I have a triangle right now, and along with that, I have a sector right now. So I have two things in this particular shape. So for area of a triangle, so I can see this is going to be my base and this is going to be my height right now. So I am going to use down the formula. हमने use किया 1/2 multiply base which was r cos theta multiply by height which was r sin theta. So I am going to use these values. First मैं triangle की बात कर रहा हूँ, then I am going to discuss about sector also. So for triangle, what I need to do first thing is I'll be writing 1/2. And for r cos theta, what I'll be doing, I'll be putting the value. So I'll be writing 6 cos, instead of writing theta, I'll be writing 1/5 pi multiply by, I'll be writing 6 sine
1/5 pi. Now this was basically the area of triangle. I'm going to put down the bracket over it also. ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से निकल आया, सही है, आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी. यू हैव यूज द फॉर्मूला ऑफ 1/2. आपने जो फॉर्मूला यूज करा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला साइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल का, and that is the formula of 1/2 multiply base into height. Now I'm going to do the working for the area of the sector. सेक्टर के एरिया के लिए वर्किंग करता हूँ जो इसमें एड अप होगा. नाउ एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला था हमारे पास, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 r square theta. So I'll be writing 1/2, and instead of writing r square I'm using the value of r as 10. So I'll be writing 10 square multiply by theta. So that is going to be 1/5 pi. या आपने वैल्यू यहाँ पे लिखी, और मेक श्योर योर कैलकुलेटर्स आर इन रेडियन फॉर्म. मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज किया आपके सामने, एंड प्लीज मेक श्योर आप जरा यहाँ पे चेक करो. सो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6 cos you have 1/5 pi. I'll be writing pi, and now bracket close, multiply by 6 sine, and then I have a fraction again, so I have 1/5 pi हमने यहाँ पे लिखा. और इसके अंदर वी आर गोइंग टू ऐड द वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/5, एंड यू हैव पाई राइट नाउ. सो द एक्यूरेट वैल्यू विच यू आर गोइंग टू गेट राइट नाउ वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी. प्लीज मेक श्योर आपने सारी की सारी वैल्यूज करेक्ट पुट करी हुई है, सो आपके पास यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, राइट. एंड योर फाइनल आंसर राइट नाउ इज कमिंग 55.2. आई गेस हमने एक छोटा सा माइनर सा कोई एरर किया होगा जिसकी वजह से हमारा, अच्छा सॉरी, दिस वाज नॉट 6, वो प्रीवियस पार्ट की वजह से आई वाज गेसिंग ये 6 था. सो द रेडियस वाज 10, हमने यहाँ पे 10 लिखना था, मैंने गलती से यहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है. रेडियस आपके पास 10 था बेटा, तो इसे करेक्ट कर देना कि आपने यहाँ पे 6 नहीं लिखना, वो लास्ट पार्ट का 6 था तो मैंने उससे रिलेट कर दिया. सो दिस इज 10 एंड दिस इज 10, या आपने 10 कर दिया. सो एज यू कैन सी, सो यू आर गोइंग द वैल्यू ऑफ, आपने एरिया की वैल्यू आपके पास आ गई 55.192, एंड इन थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स यू आर गोइंग टू राइट 59.2 इज बेसिकली द वैल्यू फॉर द एरिया. आपके पास इस वाले पार्ट का एरिया यहाँ पे निकल आया, and that is going to be your final value. तो ये आपके पास आ जाएगी. सिंपल सा पार्ट था. अगेन there was only one thing, you have to just go through from the parts, you have to read down the proper instructions, और आपसे ही आराम से हो जाएगा, कोई आपको मसला नहीं होगा. Now moving forward towards this particular part, now this is again a very simple kind of part, but थोड़ी सी डायग्राम के मुताबिक if you are looking at the diagram आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि थोड़ा ये complicated है, but it's not kind of complicated, it's very easy. So I'm giving you 2 to 3 minutes. आप लोग जरा इसे देखो और चेक करो, and then I'm doing the whole part for you guys. Okay, for this particular part, what is happening right now is कि आपने इसे ना completely अच्छे तरीके से एक तो read करना है. You have to go through each and every single information the examiner is given to you for this part, and then you have to move forward. So now in the first part, देखो, it's a kind of a very technical part. Each and every single information in this part is highly important. So they are saying that the diagram shows a circle C1 touching a circle C2. So there are two circles C1 and C2 at a point X. Circle C1 has a center A and the radius 6 centimeter. The first circle जिसका smaller वाला है, the radius is 6 centimeter, and the second circle the radius is 10 centimeter. Points D and E lie on C1 and C2. Points D और E lie करते हैं C1, C2 respectively. DE is parallel to AB, which we can see, and the angle DAX is already given, which is 1/3 pi radians. और angle EBX जो आपको given है वो theta आपको given है. Now they are saying by considering the perpendicular distance of D and E from AB, show that the exact value of theta is sine inverse. दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू, वो आप प्रूव करके दिखाओ. देखो उन्होंने आपसे एक बात बोली, नाउ दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर दिस पार्ट. दे आर सेइंग बाय कंसीडरिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डी एंड ई फ्रॉम ए बी. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से राइट नाउ, दे आर ट्राइंग टू से कि भाई द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन, दिस लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और मैंने जो ये वाली लाइन ड्रॉ करी, दोनों का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, एग्जैक्टली सेम है. उन्होंने इस बात के ऊपर एम्फेसाइज किया, उन्होंने बोला कि इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू निकाल के दिखाओ. तो आई एम गोइंग टू यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर दिस पार्ट. सो द फर्स्ट थिंग इज आई एम गोइंग टू डू, द फर्स्ट पार्ट इज कि आपने सबसे पहला काम यहाँ पे ये करना है कि आई एम गोइंग टू डू द फर्स्ट पार्ट. नाउ फॉर द फर्स्ट पार्ट, चलो इसको मार्क कर देते हैं थोड़ी देर के लिए. आई एम गोइंग टू मार्क इट. मैं इसको कंसिडर करता हूँ, दिस इज y एंड दिस इज z. ये मैंने मार्क कर दिया. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट, ये मैंने अपनी आसानी के लिए ताकि आप लोग इससे आराम से रिलेट कर सको.
So for this particular part, as I can see, if I want to take out the value of dy, so dy is acting as the opposite value right now. तो अगर मुझे opposite चाहिए, so I'm going to use sin theta is equals to opposite upon hypotenuse, and instead of writing theta, I'm going to write 1 upon 3 pi, और opposite की जगह पे I'll be writing dy, और hypotenuse की जगह पे I'll be writing 6 right now. And because I want the value of dy right now, so 6 साइन 1/3 इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ डी वाई, या आपके पास यहाँ पे डी वाई की वैल्यू आ जाएगी. एंड इफ आई एम गोइंग टू यूज कैलकुलेटर, अगर मैं यहाँ पे पूरा कैलकुलेटर वगैरह यूज करूँ, तो आप देख लो आपके पास डी वाई की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी. दिस इज गोइंग टू बी 6 साइन 1/3 पाई, एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 3 स्क्वायर रूट 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई. आपके पास 3 स्क्वायर रूट 3 डी वाई की वैल्यू आ गई. So once you got the value of dy, that is basically equals to the value of easy also. तो ये भी आपके पास easy की ही वैल्यू होगी. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि easy is equals to 3 square root 3. So now I know this value. अब हम क्या करेंगे? अब now I'm going to consider this bigger triangle right now. और हमें easy की वैल्यू पता है, हमें ये पता है, we know the hypotenuse, we know the opposite. So we are again going to use the value of sine. हमने sine का ही रेशियो यूज करना है बिकॉज मुझे यहाँ पे थीटा निकालना है. So I'm going to use sin theta one more time and opposite upon hypotenuse. हमने थीटा की जगह प्लेस किया, ये थीटा ही लिखा, और ऑपोजिट की जगह पे राइट नाउ ऑपोजिट इजी है, इजी की वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट 3, हाइपोटेन्यूज इज 10, सो आई एम गोइंग टू राइट 10 अगेन. और अगर मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 10. सो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये आपके पास वैल्यू जो थीटा की आ रही है वो ये आ रही है. सही है, आपने यहाँ पे प्रूव कर दी. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्क्वायर ओवर इट, ताकि आपके पास यहाँ पे एक प्रूफ आ गया. सो पहला वाला पार्ट कर दिया. यू हैव गॉट हाउ मेनी मार्क्स? आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल गए हैं फॉर दिस कंप्लीट पार्ट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हाईली इंपॉर्टेंट, और उसकी तरफ अच्छे तरीके से फोकस करके चलो ताकि पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आए. देखो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आगे वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी वे में हो जाएगा. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट राइट नाउ. सो द फर्स्ट डिटेल है कि आपको यहाँ पे चाहिए पेरीमीटर. आपको पेरीमीटर चाहिए फॉर द शेडेड पार्ट. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. दे हैव ऑलरेडी टोल्ड अस कि प्लीज आंसर निकालो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर. तो पेरीमीटर हमें चाहिए शेडेड पार्ट का. सो फॉर द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट बेटा यू नीड दिस काइंड ऑफ थिंग. आपको ये वाली आकलन चाहिए. मैं जरा कुछ चीजों को हाईलाइट कर रहा हूँ. एक हमें ये वाली आकलन चाहिए dx वाली, हमें ये ex वाली आकलन चाहिए, और ये डी वाली लाइन चाहिए. सो आई एम गोइंग टू राइट दीज ईच एंड एवरी सिंगल वैल्यू राइट नाउ, ताकि आपको यहाँ पे अंदाजा हो कि मैं यहाँ पे करना क्या चाह रहा हूँ. तो पी वाई के लिए मुझे अगर पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर के लिए आई नीड द आर्क लेंथ ऑफ डी एक्स प्लस आई नीड द आर्क लेंथ ऑफ ई एक्स प्लस आई नीड द वैल्यू ऑफ डी. मुझे डी की वैल्यू चाहिए, मतलब ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करना स्टार्ट करी. सही है. नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि आई एम बी डूइंग द वर्किंग ऑफ डी फर्स्ट. मैं डी की वर्किंग को लेके आगे चलता हूँ. सही है. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आई विल बी डूइंग द वर्किंग फॉर डी. सो इफ यू आर गोइंग टू लुक एट डीई, तो डी को अगर आप देखते हो, सो डी इज बेसिकली इक्वल्स टू वाई जी. या आप इस बात पे अग्री करोगे कि डीई जो है वो आपके पास इक्वल है वाई जी के. सही है. बिकॉज ये देखो ये जो पूरा फिगर है वो इस तरह से, दिस इज काइंड ऑफ रेक्टेंगल राइट नाउ. सो द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल्स टू वाई जी राइट नाउ. तो अगर मैं आपसे बात करूं कि यार इफ आई वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ वाई जी, सो बेसिकली वाई जी की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो टोटल वैल्यू इज ए बी. टोटल जो लेंथ है आपके पास वो ए बी की लेंथ है, और उस ए बी की लेंथ में से आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट ए वाई, and then I'm going to minus zb from it. So that's how I'm going to get the value of yz, and yz is basically equals to de right now. तो ये ab minus ay minus zb ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी. सही है. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ de is equals to ab minus ay minus zb. ये हमारे पास यहाँ पे हो गया. सही है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस पार्ट, हमने ए बी की वैल्यू को चेक किया. सो बेटा दिस इज द रेडियस, दिस इज 6 एंड दिस इज अगेन द रेडियस. बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 10. सो द वैल्यू ऑफ ए बी राइट नाउ इज 10. ये 10 वाली वैल्यू हमारे पास आ गई. नाउ वी विल डू द वर्किंग फॉर ए वाई राइट नाउ. बेटा ए वाई की वर्किंग के लिए हमने ये किया कि ए वाई एक्ट कर रहा है यहाँ पे एज एन एडजेसेंट, और एग्जैक्टली जीबी भी एक्ट कर रहा है एज एन एडजेसेंट. तो मैं उसकी वर्किंग करता हूँ यूजिंग द रेशियो ऑफ कॉस विद अ डिफरेंट कलर. तो मैंने यहाँ पे कॉस यूज करा, थीटा की जगह पे 1/3 पाई पुट कराया.
हाइपोटेन्यूज इज 6, हमने 6 लिखा और यहाँ पे ए वाई लिख दिया। तो ये हमारे पास ए वाई की वैल्यू आ गई एंड ए वाई इज गोइंग टू बी 6 कॉस 1/3 पाई। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी ए वाई की। और आफ्टर सॉल्विंग इट कम्प्लीटली तो हमने चेक किया कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। देखो कैलकुलेटर भी साथ साथ यूज करते जाओ ताकि आपको अंदाजा होता रहे। 6 लिखा हमने, कॉस लिखा और यहाँ पे लिखा 1/3 पाई। इसमें थोड़ा सा फोकस और अच्छा खासा आप लोगों का चाहिए होगा क्योंकि इसमें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हमारे पास ए वाई की वैल्यू आ गई एंड दैट वैल्यू इज 3। ये आपके पास 3 आ गए यहाँ पे ए वाई। तो मैंने ए वाई की जगह पे वी आर गोइंग टू राइट 3 के दैट इज बेसिकली 3। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ जीबी। अब हम जरा जीबी की वैल्यू निकालते हैं। तो जीबी की वैल्यू के लिए भी आई एम गोइंग टू यूज द सेम रूल बट थोड़ा सा मैं इसकी एक्यूरेसी को वो करूंगा ताकि हमारे पास जो फाइनल आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा हो। सो आई विल बी यूजिंग द रेशियो ऑफ कॉस। हमने कॉस लिखा, फॉर्मूला यूज किया, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा थीटा की प्लेसमेंट के ऊपर what I am going to write now, थीटा की जगह के ऊपर बिकॉज द वैल्यू ऑफ थीटा वाज दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये आपके पास पूरी के पूरी थीटा की वैल्यू थी। तो मैं यहाँ पे थीटा की जगह पे पुट करूंगा साइन इनवर्स 3। थोड़ा मैं इसको डिटेल में लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए प्रॉपर तरीके से। इसको जूम इन करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए। सो बिकॉज आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ जी बी, तो बेटा जी बी के लिए हमने यूज किया cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली थी। थीटा की वैल्यू कहाँ निकाली थी? दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा साइन इनवर्स। तो हम थीटा की जगह पे ये पूरा के पूरा वैल्यू जो है हमने निकाली थी उसको पुट किया। सो आई एम गोइंग टू राइट साइन इनवर्स 3 स्क्वायर रूट 3 एंड डिवाइड बाय 10, ये हमने लिखा, ब्रैकेट क्लोज कराया। और एडजेसेंट की जगह पे वी आर गोइंग टू राइट जीबी और हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम लिखेंगे 6। ये जीबी की वैल्यू आ जाएगी 6 कॉस साइन इनवर्स 3 स्क्वायर रूट 3/10। इसको एज इट इज कैलकुलेटर में हमने पुट किया। सो वी आर गोइंग टू गेट एन एक्यूरेट वैल्यू। हमारे पास प्रॉपर एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। सो वी आर गोइंग टू यूज राइट नाउ। और ये हमारे पास आएगा 6, वी हैव कॉस, देन वी हैव साइन इनवर्स और उसके बाद हमारे पास लिखा होता है 3 स्क्वायर रूट 3। देखो मैं एज इट इज टाइप कर रहा हूँ, सही है। ब्रैकेट क्लोज किया, ये क्लोज किया, तो हमारे पास इसका आंसर जो आ रहा है एंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट विच आई एम गोइंग टू राइट गेट राइट नाउ, वो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा पूरा के पूरा। एंड दैट वाज 5.126। आई एम गोइंग टू चेक दिस वैल्यू वन मोर टाइम। इसको जरा चेक कर लेते हैं हम लोग कि हमारे पास ये वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही। ओके सो अच्छा नहीं 6 नहीं था, हाइपोटेन्यूज दिस वाज 10। यहाँ पे 10 था, इसको सही कर देते हैं। So the value of ZB which I'm going to get right now, ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ गई एंड दैट इज 8.544। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। और आगे 00 लिख रहा है तो मैं 00 नहीं लिख रहा, सो आई एम जस्ट राइटिंग 8.544। ये हमारे पास जीबी की वैल्यू भी आ गई। बेटा जब जीबी की वैल्यू आ गई तो आपने जीबी की वैल्यू भी यहाँ पुट करा दी। देखो इसमें डिटेल पार्ट ये था कि यू हैव द वैल्यू ऑफ ए वाई एंड देन जीबी, आपको बहुत डिटेल में जाना था। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 8.544 इज द वैल्यू ऑफ जीबी। सो दैट्स हाउ डीई की वैल्यू हमारे पास निकल आई एंड द वैल्यू ऑफ डीई विच आई नो राइट नाउ। और डीई की वैल्यू मैं जरा कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करता हूँ कि हमारे पास डीई की वैल्यू क्या आ रही है। सो वी हैव दिस, अच्छा दिस वाज द टोटल लेंथ ऑफ ए बी वाज, ये 10 नहीं था, ये 16 था। हाउ इट वाज 16? बिकॉज ये आपके पास 6 था और ये आपके पास 10 था। सो इन दोनों को जब आपने एड अप किया था तो यू आर गेटिंग 16 राइट नाउ। तो आपने 16 में से माइनस कराया 3, माइनस कराया 8.544। सो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ डी एज 4.456। ये आपके पास यहाँ पे डीई की वैल्यू आ गई, सही है। अब जब वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ डी, नाउ यू नीड द वैल्यू ऑफ, आपको आर्क की वैल्यू चाहिए ना। आर्क है वेरी सिंपल। Now the angle is given, the radius is given. That is very easy for you to take out the value of arc length. Both of the arc lengths are highly simple. तो आप सिंपल से यहाँ पे एक पार्ट ये करोगे। अब मैं जरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर रहे होगे। देखो अब मैं जरा पूरी वैल्यूज को टाइप करना स्टार्ट करता हूँ, देन वी आर गोइंग टू एड इट टू गेट अ कंप्लीट वैल्यू फॉर द पेरीमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप। सो पेरीमीटर का मतलब ये था आर्क लेंथ ऑफ dx। सो इफ आई नीड द आर्क लेंथ ऑफ dx, तो r थीटा 6 लिखा हमने और थीटा की वैल्यू लिखी 1/3 पाई, प्लस हमें चाहिए आर्क लेंथ ऑफ ई एक्स, तो हमने 10 लिखा एंड अगेन हमने लिखा 1/3 पाई लिखा और प्लस हमने करा दिया 4.456। अच्छा अब सारी वैल्यूज को हमने कैलकुलेटर के अंदर पुट किया
जरा ना चीज़ों को चेक करते रहना, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि वी आर इन स्पीड एंड वी डू सम मिस्टेक्स। तो उसको ज़रा बाद बाद में चेक कर देना कि आप लोग सारी वैल्यू सही तरीके से टाइप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या उसके अंदर कोई एरर कर रहे हो। 1/3। ओके, द वैल्यू, अच्छा इसका जो थीटा था, दैट थीटा वाज नॉट दिस एंगल, यहाँ पे एंगल हमारे पास कुछ और था। एंड दैट वाज, ये मैं एंगल लिख देता हूँ, साइन इनवर्स, ये था 3√3/10। जो आपके पास थीटा की वैल्यू आपने निकाली थी, वो वाली वैल्यू हमने लिखी इसकी। इस पे भी गौर करना है, ये मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, यू कैन इवन यूज अ डेसिमल वैल्यू ऑल्सो, बट मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि हमारे पास ओवरऑल जो आंसर है वो आपके पास बिल्कुल ना एक्यूरेट आंसर आ रहा है। 3√3 लिखा, ये 10 लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखा प्लस, ये विल डू 4.456। तो ये हमने कर दिया। इसके अंदर एक सिर्फ चीज हम चेक कर लेते हैं, सो वी हैव डन दिस थिंग। और यहाँ पे हमने जब इस सारी वैल्यूज को ऐड अप करा है, सो वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 16.20। अब द मेन थिंग इज कि मैंने 16.20 क्यों लिखा, उसका रीजन हमारे पास ये था कि एग्जामिनर ने बोला था कि योर आंसर मस्ट बी इन 4 सिग्निफिकेंट फॉर्म, राइट। अब देखो, दिस वाज अ वेरी डिटेल पार्ट, सही है। लुक इनटू दिस, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं उस पर थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर क्लियर हो गया तो हम आगे मूव करें, अदरवाइज मुझे बता दो अगर किसी बच्चे को कोई मसला है तो मैं रुक जाऊं थोड़ा सा और मैं इसको देख लूं जरा, सही है। और अगर आगे मूव करना है तो भी मुझे बता दो गाइस, किसी को भी मसला नहीं है। वेरी नाइस। ओके, गुड गुड। Okay, so this is the last part of 2011, and this is a highly simple one. In this particular part, the first thing is कि आपको again given है एक parallelogram, and the information in the diagram ABC is a parallelogram. AB is equals to BD is equals to DC, and the length of basically this side is 10 centimeter. AB आपके पास 10 है, ये सारा 10 है, and angle ABD is 0.8 radians. That is already given to you guys, right? ABD and BQC are arc of a circle. ये आपके पास आर्क है सर्कल के, ये वाला आर्क है और ये वाला आर्क है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, दो दो मार्क्स के दो तीन पार्ट्स हैं, बड़े सिंपल से वे में हो जाएंगे। So now in the first part they are asking for the area of a parallelogram. So यार, if you're looking at the parallelogram, so first I need to notice कि यार ये जो parallelogram है, it's basically a combination of these two triangles right now. So the first triangle right now जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, guys 1 minute, एक जरा मिनट रुक जाना यहाँ पे। Okay, so what was happening for this part is कि you need the area of a parallelogram right now. आपको इसका parallelogram का area चाहिए, so you need to understand this thing कि this is basically it's a combination of two triangles. एक triangle ये रहा हमारे पास, एक triangle ये रहा, और दोनों triangles आपके पास यहाँ पे क्या है, एग्जैक्टली आपके पास दोनों के दोनों ट्राइंगल सेम है। उसका रीजन ये है कि यार ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब है इसका ये वाला एंगल भी क्या होगा, 0.8 होगा। सो अगर हमने एक एरिया निकालना है, मतलब एक अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करूंगा, विच इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाय 10। देखो ए हो गया, ये बी हो गया, और मल्टीप्लाई कराया साइन थीटा के साथ, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज 0.8, पर बिकॉज यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं बेटा, सो आई मल्टीप्लाई दिस होल थिंग बाय 2 ऑल्सो। तो ये आपने 2 से मल्टीप्लाई कराया। एंड नाउ अगेन आई एम गोइंग टू यूज माई कैलकुलेटर। तो देखो कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कराई हमने, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और दिस इज गोइंग टू बी 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 0.8। मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन रेडियन। तो ये आपके पास आ जाएगा 71.73561, ये आ जाएगा, और एरिया की वैल्यू आपके पास आई 71.7 इज द वैल्यू फॉर द एरिया। ये आपके पास यहाँ पे ये एरिया निकला है, दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्ट। ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, सही है। Now moving forward, they are asking for the area of the complete figure A, B, Q, C, D, P. So complete figure की उन्होंने बात करी। So complete figure के अंदर you are observing this thing that we are talking about two kind of sectors. अगर ये complete figure की आप बात कर रहे हो, so आपके पास दो सेक्टर आ रहे हैं। So जब आपके पास दो सेक्टर्स आ रहे हैं, तो दोनों का एरिया आप किस तरह से करोगे उसको जरा हम देख लेते हैं। So again, because two sectors is multiply by 2 कराया, and I'm going to use the area of a sector which is 1/2 r square theta। r की जगह के ऊपर the radius is 10, so I'll writing 10 square theta, theta की जगह पे you are going to write 0.8। again 2 से 2 simplify हो गया, and that is going to give you the value of 80। ये आपके पास एरिया आ जाएगा 80 का। सो दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट, ये आप लोगों ने आराम से कर दिया, एंड आपको दो दो मार्क्स करके यू गेट 4 मार्क्स ऑन दिस पार्ट, दोनों को मिला के। लास्ट वाले पार्ट में दे आर आस्किंग फॉर द पेरीमीटर ऑफ द कंप्लीट फिगर ए बी। नाउ इफ दे आर आस्किंग फॉर द पेरीमीटर ऑफ द कंप्लीट फिगर,
सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बाउंड्रीज, राइट? ये हमारी बाउंड्री है, this is the boundary, this is the arc length, this is the arc length, which is also the boundary, and this is also the arc length right now. So you need all of each and every single thing. तो आपको ये पूरा के पूरा यहाँ पे चाहिए, जरा इसको समझ लेते हैं. So for the perimeter I need this length, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमें चाहिए arc length of APD चाहिए, हमें arc APD चाहिए, प्लस हमें चाहिए arc CQB चाहिए, प्लस हमें AB चाहिए, और हमें चाहिए DC. अब आर्क एपीडी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिकॉज आई नो द फॉर्मूला फॉर द आर्क लेंथ, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.8 आर थीटा फॉर्मूला होता है, प्लस आर्क उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.8, एंड देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, ये आपने कर दिया, और ये नीचे आपके पास ए बी की वैल्यू भी 10, डीसी की वैल्यू भी 10, तो ये आपके पास सारी के सारी वैल्यूज इस तरह से आ गई. सो दैट इज गोइंग टू बी, या आप अगर सारा के सारा कंप्लीट सॉल्व करोगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.8 ये हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 ये 20 हो गया, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू एन आंसर ऑफ 16 प्लस 20, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू एन आंसर ऑफ 36. तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. एंड दीज वर ऑल ऑफ द पास्ट पेपर्स ऑफ 2011. ये मैंने आपको 2011 के सारे पास पेपर्स कंप्लीट करा दिया फॉर सर्कुलर मेजर.